So if you talk about question number 76, this question was particularly dropped by NTA because the question formation was not right, or the choices given by the NTA were not right. So this question was dropped actually by NTA and marks are given to everyone. But still we will see that how we can reach to a justifiable answer for this question, right? Though this question was dropped by NTA, but still we should search that how what can be done regarding this question. So the question says that ecological engineering is based on which of the four classes of eco technology, right? So it is saying that जो आपकी ecological engineering होती है, ठीक है, that depends upon or based on which of the four classes of eco technology. So we will say what eco technology is. So we'll do take a brief idea about this question, right? So as I said to you that this was dropped by NTA, but still we will see what eco technology means and how we can reach to a conclusive answer. So classification of eco technology, ecological engineering may be based on one or more of the फॉलोइंग फोर क्लासेस ऑफ इको टेक्नोलॉजी. तो ये चार क्लासेस है इको टेक्नोलॉजी की, इसको ध्यान से देखिएगा बिकॉज यू कुड हैव अ क्वेश्चन इन फ्यूचर. ऐसा नहीं कि ये गलत हुआ तो कभी उस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बिकॉज कॉन्सेप्ट यू शुड नो. सो द फर्स्ट वन सेज, जो फर्स्ट क्लास है, ecosystem are used to reduce or solve the pollution problem that otherwise would be more harmful to other ecosystem. A typical example is the use of wetland for waste water treatment. तो यहाँ पे इस बात पे एम्फेसिस दिया गया है जो पहली क्लास है कि इकोसिस्टम जो है उनको यूज किया जा सकता है पोल्यूशन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए. अदरवाइज क्या होगा, द अदर इकोसिस्टम विल आल्सो गेट इफेक्टेड. जैसे एग्जांपल हमने लिया कि जो वेटलैंड है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर रिक्लेमेशन के लिए हम यूज करते हैं उसको. And there are number of studies which shows that wetland are effective in treating the wastewater, or especially your developing some of the Scandinavian countries such as Norway, Sweden, right? They have shown these things. So this is one of the aspect of eco technology or ecological technology or ecological engineering, right? Then second thing if you ask is, yeah, second thing is ecosystem are imitated or copied to reduce or solve a pollution problem leading to constructed ecosystem. Examples are fish pond or constructed wetland for treating the wastewater or diffuse pollution source. So बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ecosystems को हम copy करते हैं, mimic करते हैं, so that we can reduce some pollution. So जैसे for example we construct fish ponds and we construct some of the wetland for wastewater treatment, और जो भी diffuse pollution sources होते हैं, ये भी एक aspect है इसका eco technology का. Then the third one is the recovery of ecosystem after significant disturbance. जैसे कोई भी ecosystem आपका disturb होता है, ठीक है ना? तो examples are coal mine reclamation and restoration of lakes and river. तो यहाँ पे भी हम इको टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं या इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं, जो इको टेक्नोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है. तो इसमें क्या करेंगे, हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे जो कोई इकोसिस्टम हमारा सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोल की माइनिंग होती थी, ठीक है, आपको उसको रिस्टोर करना है कोल माइन एरिया को, या फिर किसी आपको लेक को या रिवर को रिस्टोर करना है व्हिच हैव बीन टिपिकली डिस्टर्ब. सो वी कैन अप्लाई दिस थिंग देयर आल्सो. देन नेक्स्ट कम द फोर्थ वन, the use of ecosystem for the benefit of humanity without destroying the ecological balance. For example, utilization of ecosystem on an ecologically sound basis. Typical examples are the use of integrated agriculture and development of organic agriculture. तो ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं, जैसे कहीं पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सो दैट सस्टेनेबल वे में आप उसको ग्रो करेंगे फील्ड को. दिस टाइप ऑफ इको टेक्नोलॉजी फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन इन द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे इसका काफी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, राइट. इन लास्ट वी कैन से दैट it is noted that eco technology or ecological engineering operate in the environment and its ecosystem. environment और ecosystem में operate करती है, ठीक है ना.
Yeah, and this does not बहुत सारे इसमें फिर आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को आपको क्यों मैं व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज जो ऑप्शंस थे वो ठीक प्लेस नहीं किए गए ऑलमोस्ट। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इफ यू सी फॉर 76 यूज ऑफ इकोसिस्टम टू रिड्यूस द पोल्यूशन प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ठीक बात है। इमिटेशन ऑफ इकोसिस्टम रिड्यूस पोल्यूशन लीडिंग टू कंस्ट्रक्टेड इकोसिस्टम, ये भी बहुत ठीक बात है। रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम आफ्टर सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस, ये भी ठीक बात है। राइट, यूज ऑफ इकोसिस्टम फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तो चारों के चारों यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए थे, पर ऑप्शन नहीं था कोई भी, ठीक है। ऑल फोर सीम्स टू बी करेक्ट एज पर, तो ऑल कुड बी अ करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन में ऑल दिया नहीं एनटीए ने, तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड। बट अगर दोबारा से कहीं आ जाता है तो जो चारों के चारों ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि चारों के चारों एस्पेक्ट जो हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो 4 क्लासेस है इको टेक्नोलॉजी की, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 76 जल्दी बताइए फटाफट से। क्यों गलत, क्यों ड्रॉप किया गया, मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि ऑप्शन ही ठीक नहीं रखे एग्जामिनर ने, ठीक है। अगर ऑप्शन ऑल होता तो करेक्ट हो जाते। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके बुकलेट से आया है, ठीक है। रॉक्स और मिनरल का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली आपकी बुकलेट से आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछता है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स वन। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स बाय परसेंटेज वॉल्यूम इन द अर्थ क्रस्ट? पॉइंट टू बी नोटेड, दे आर आस्किंग परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन अर्थ क्रस्ट। तो ये जो पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं वहां पे ये करने हैं, एक तो बात जो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दूसरी बात अर्थ क्रस्ट, दो चीजों को ध्यान देना है यहाँ पे, और दोनों के बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकालना है। सो इट इज आस्किंग कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन रॉक्स को as given by the percentage by volume in the specific direction of the earth crust, right, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये तो सबको आपको पता ही है कि जो आपकी इग्नियस रॉक होती है वो मैक्सिमम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इग्नियस रॉक जो है उनकी क्वांटिटी जो है मैक्सिमम है, ठीक है, वो मैं अभी ब्रीफिंग में भी करूंगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी मेटामॉर्फिक, और लास्ट में आती है आपकी सेडिमेंट्री। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा परसेंट बाय वॉल्यूम में अर्थ के क्रस्ट में, सबसे ज्यादा रहेगा इग्नियस रॉक का। तो इसको हम 1 दे देंगे, जस्ट अ मिनट, 1, and then followed by metamorphic rock 2, and then followed by B, which is sedimentary rock 3. So as per the given choices, the correct option would be 4th. मैं अभी इसकी ब्रीफ आइडिया आपको एक दे देता हूं क्यों ऐसा है। तो यू कुड से लाइक ए इज जस्ट, you could say in this question that A percentage by volume is greater than C greater than B, which is the order. Right, now let's see some of the brief idea why the igneous were more followed by metamorphic followed by sedimentary, right? देखिए अब यहाँ पे मेंशन है अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड अबाउट 90% टोटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट, ऑक्सीजन से लेकर एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन आपको पता ही है, ओल्ड सिबलिंग ऑफ एल्बिना वाला, की ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए अर्थ क्रस्ट का हमने यहाँ पे एंटायर अर्थ क्रस्ट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स की बारी है, कौन कौन से मिनरल है, ठीक है ना, मेजर मिनरल कौन से हैं, ठीक है। तो मेजर मिनरल आपके फेल्सपार हो गए, क्वार्ट्स हो गए, पायरोक्सिन हो गए, एम्फीबोल हो गए, माइका, ठीक है, ओलिवीन, ठीक है, ये सारे मेजर हैं आपके। और फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आपको दी हुई है, इग्नियस में एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, राइट, एंड देन सेडिमेंट्री में क्लास्टिक, बायोलॉजिकल, केमिकल, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड, मेटामॉर्फिक में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज वाइज रेशियो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यू कैन सी हियर दैट जो पाई चार्ट है,
पाई चार्ट है, पाई चार्ट में भी आपको इग्नियस मैक्सिमम दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी गो बाय दिस कलर, तो इग्नियस आपको मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है, तो इग्नियस का परसेंटेज मैक्सिमम है, ऑर्डर भी यही है। उसके बाद आपका आ जाता है जी मेटामॉर्फिक, और उसके बाद आ जाता है आपका सेडिमेंट्री, तो ये ध्यान रखना है जो ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर भी लिख लूँ यहाँ पे 1 2 देन 3% बाय वॉल्यूम, अर्थ के क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ आपका इग्नियस रॉक जो है दिखा रखा है, कहाँ कहाँ आपको दिखेगा बनने को। फिर बारी आएगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक एंड देन लास्ट में सेडिमेंट्री। ऑल द थिंग्स हैव बीन मेंशन इन डिटेल, बट परसेंटेज आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है अलग अलग टाइप्स में, बट आपको ध्यान रखना है। सो इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? व्हाई द करेक्ट आंसर इज फोर्थ? व्हाई द करेक्ट आंसर इज फोर्थ? क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? फोर्थ करेक्ट आंसर है इसका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे आ जाइए, आपके मटेरियल कंटेंट में भी है, लास्ट में लिखा हुआ है क्यों परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। Yeah, it's a very good question. It is also directly from your copy, and the material which is given there is quite useful. Again, it has striked out, and the question is directly here. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में दिया हुआ है, आपके बुकलेट में भी दिया हुआ है, जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें भी है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता है अ नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज एसोसिएटेड विद हायर प्लांट। बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सर बताइए, ठीक है, which belongs to actinomycetes, ठीक है, actinomycetes bacteria and higher plants, right? तो सिंपल सा हमें तो पता है कि भाई फ्रैंकिया है इस कैटेगरी में, ठीक है, फ्रैंकिया इज द करेक्ट आंसर, ये दिया भी हुआ है आपका वहां पे, ठीक है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मैं इसकी ब्रीफिंग्स आपको करूंगा जरूर। फ्रैंकिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो फ्रैंकिया थर्ड इज द करेक्ट आंसर है, 78 थर्ड फ्रैंकिया इज द करेक्ट आंसर। हम डिटेलिंग्स इसकी देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, बहुत सारा मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे जरा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फिक्स्ड नाइट्रोजन inorganic compound used by plant. More than 90% of all nitrogen fixation is affected by the organism, which thus play an important role in the nitrogen cycle, right? Then we have two kind of nitrogen fixing bacteria recognized. The first kind is free living non symbiotic bacteria, ठीक है, free living non symbiotic bacteria including the cyanobacteria, जिसमें आ गया आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, एनाबिना आ गया, नोस्टोक आ गया, एंड जेनरा सच एज एजिटोबैक्टर, ठीक है ना, एनाबिना, नोस्टॉक जो चॉइस में है, एनाबिना है, एजिटोबैक्टर, बेजरंकिया, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आ गए आपके नॉन सिम्बायोटिक में या फ्री लिविंग में। दूसरी कैटेगरी जो आपको ध्यान रखनी है, जो दूसरी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, व्हिच इज द सेकंड काइंड ऑफ कंप्राइज म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, एसोसिएशन है किसके साथ? हायर प्लांट के साथ। So the second kind of company mutualistic symbiotic bacteria, examples include rhizobium, जैसे आपको पता है leguminous plant के साथ, associated with the leguminous plants, various members of the pea family. Then we have Frankia, यहाँ पे आपका आंसर आ गया है निकल के। Then we have this Frankia, जो हमारा करेक्ट आंसर है, Frankia, right? Associated with a certain dicotyledonous species, ठीक है, एक्टिनोराइजल प्लांट्स, एक्टिनोमाइसिटीज बोला ना आपको, ठीक है, तो हाइयर प्लांट्स के साथ है आपका, और एक्टिनोमाइसिटीज है एक तरह का ये जो फ्रैंकिया है इस कैटेगरी में, ठीक है। एंड सम ऑफ द अदर स्पीशीज एजोस्पिरिलम, राइट, स्पीशीज एसोसिएटेड विद द सीरल ग्रास। अब एजोस्पिरिलम भी ऑप्शन में है, लेकिन एजोस्पिरिलम किसके साथ है? सीरल ग्रास के साथ, वो हाइयर प्लांट्स के साथ नहीं है,
ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे क्यों हमने फ्रैंकिया को चूज किया, क्योंकि हायर प्लांट के साथ पूछ रहा है आपसे, राइट। देन वी हैव सर्टेन अदर थिंग्स हियर जिसको आप देख सकते हैं, द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, right? The symbiotic nitrogen fixing bacteria invade the root hair by host plant where the multiply and stimulate formation of root nodules, ये हम सब देख चुके हैं, right? तो इसमें कोई इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राइजोबियम तो आपको एग्जांपल पता ही है। So this was the some bit of explanation about this and how this happened. I hope the everyone is clear with this, that why we choose Frankia in this. So the correct option here in 78 is Frankia, which is a nitrogen fixing symbiotic actinomycetes member associated with a higher plant. Is it clear to everyone? Question number 78. Anyone having any doubt? You should take 110% benefit of these discussions, because जब आप इसको पढ़ेंगे further detailed selected solutions को, तो it will strike on your brain and some of the connected question might be asked, right? You can expect some here and there from each and every question, ठीक है, which is necessary. चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग टुवर्ड्स 79, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 79. Okay, it's a matching question and basically it is from solar energy, I would say, or yeah, solar energy, or I would say it is from energy, right? So we'll see question number 79. So we have been given two things here. One is list 1, in which we are given instrument, and list 2 the function. What does that instrument do? So we just have to match it. We just have to match it, right? Okay, so we just have to match it. तो मैं इसको उल्टा मेजर करना स्टार्ट करूंगा, उल्टा मतलब मैच करना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई विल गो ऑन इजी ऑप्शन फर्स्ट, राइट? तो मोस्ट ऑफ द लोगों को जो है पायरोहेलियोमीटर काफी बार रिपीट हुआ है आपका, ठीक है ना? तो उसको हम इजीली मैच कर सकते हैं पहले पायरोहेलियोमीटर को, ठीक है। तो पायरोहेलियोमीटर अगर आप उठाएंगे इसमें, तो दैट यू नो दैट गोज टू मेजर द डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर इरेडियंस। ये आपको अली सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है कि जो पायरोहेलियोमीटर होता है, ठीक है, दैट मेजर द डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर इरेडियंस। सो बी विल गो टू 3। देन वी हैव पायरोनोमीटर। पायरोनोमीटर तो सबको ही पता है, ठीक है। पायरोनोमीटर किस लिए होता है? टोटल सोलर इरेडियंस ऑन प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस पे अगर आपको मेजर करना है, दैट इज कॉल्ड एज पायरोनोमीटर, ठीक है। तो जो पायरोनोमीटर है, दैट इज फॉर द मेजर द सोलर इरेडियंस ऑन अ प्लेन सरफेस। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको प्लेन सरफेस के लिए पायरोनोमीटर यूज होता है, ऑन अ प्लेन सरफेस। और पायरोहेलियोमीटर क्या है? डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर इरेडियंस के लिए। देन वी हैव लक्स मीटर, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट? लक्स मीटर किस लिए होता है ये भी आपको पता है जनरली। जो लक्स मीटर है आपका, दैट विल गो टू 1 टू मेजर द विजिबल लाइट फ्लक्स। ये सबसे इजी हिंट था इसमें। विजिबल लाइट के फ्लक्स को मेजर करने के लिए लक्स मीटर को यूज किया जाता है, ठीक है ना? यूनिट भी होती है लक्स एक, ठीक है। बट लक्स मीटर इज बेसिकली यूज टू मेजर द विजिबल लाइट फ्लक्स। तो डी वुड बी 1, सी आपका हो गया जी 2, बी आपका हो गया 3, एंड लास्ट में ए जो बचा है आपका कैम्बल स्टॉक रिकॉर्डर। कैम्बल स्टॉक रिकॉर्डर विल गो टू 4 टू मेजर द सनशाइन ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए है, ठीक है। तो एज पर द मैचिंग, इफ यू सी दिस मैचिंग, so we have only one correct choice, which is option number 3 here, but we will see some of the brief idea about this theory कि कौन किस लिए है। तो करेक्ट आंसर तो आपका हो गया थर्ड, where Campbell Stokes recorder goes to sunshine duration. Then we have pyroheliometer, which is to measure the direct beam of solar irradiance, and pyronometer, which is for to measure the solar irradiance on a plane surface. Total solar irradiance के लिए होता है pyronometer basically. और लक्स मीटर आपको पता है विजिबल लाइट फ्लक्स के लिए। अब थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट वी विल डिस्कस हियर। तो कैम्बल स्टॉक्स मीटर अगर आप स्टॉक रिकॉर्डर अगर आप देखेंगे, सबसे पहला ही दिया हुआ है,
तो इट इज यूज टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन आवर, तो वो ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये तो आपको यहाँ से पता चल गया। देन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, आई एम नॉट गोइंग ऑन इट, राइट, that you can study once you have the time after the discussion. Then the second one is pyroheliometer, as I told you, pyroheliometer, right? So pyroheliometer का मैंने आपको बताया ही है, जो है आपका to measure the direct beam of solar radiance. So pyroheliometer are direct normal incident of solar radiance sensor, ठीक है। तो ये आउटडोर फोटोवोल्टाइक्स, ठीक है, इनमें आपका यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर यहाँ पे एक फंक्शन और भी है कि पायरोहेलियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, या नॉर्मल इरेडियंस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इरेडियन सेंसर भी बोल देते हैं इसको। पायरोनोमीटर आपको पता ही है, पायरोनोमीटर इज वेरी सिंपल, इज अ एक्टिनोमीटर यूज्ड फॉर द मेजरिंग सोलर इरेडियंस ऑन अ प्लेन सरफेस, एज आई मेंशन्ड, on a plane surface and designed to measure the solar radiation flux density in watt per meter square, right? ये हो गया आपका। उसके बाद लक्स मीटर आपको बताया ही है मैंने। लक्स मीटर आर यूज्ड टू मेजर ब्राइटनेस इन लक्स, दैट इज राइट, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर और लक्स, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो दीज आर द सम ऑफ द डिटेल्स अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 79। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल फंक्शंस आपको जानने हैं सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट्स के, व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाट। सो द करेक्ट आंसर हियर फॉर 79 इज थर्ड। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? जस्ट टू नो द व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर व्हाट। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? चलो आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 80 को हम देखते हैं, which is the next question. Question number 80. चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात कर लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड हैव बीन मेड ऑन द लॉज एंड द नॉर्म्स व्हिच हैव बीन रिसेंटली एडेड इनटू द वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, राइट, 2016, right, by CPCB or the competent authorities. So what this question says is that provision of extended producer responsibility, जिसको हम बोलते हैं EPR, कि जो जिस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिस्पोज ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी बंदे की है, राइट, अदरवाइज ही हैज टू पे द फाइन। सो प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोक की कोई बोतल है, तो कोक अगर बॉटल की प्रोडक्शन कर रही है, मान लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है हाफ लीटर की, तो जो प्रोड्यूसर है और जो उसको इंपोर्ट कर रहा है और जो ब्रांड ओनर है कोक, तो उन्हीं को उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी वे आउट ढूंढना पड़ेगा, दैट हाउ टू मैनेज दैट वेस्ट, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द ब्रांड्स एंड ऑल सच काइंड ऑफ प्रोड्यूसर व्हिच कम्स अंडर दिस extended producer responsibility, right, for collecting back the waste generated by their product has been in the। तो ये पूछा है कि इस ये जो रूल है इसको कहाँ पे आपने देखा कि ये कहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, ठीक है, किस किस में ये है, मतलब वेयर इट हैज बीन मेंशन, राइट, एंड दिस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट हैज बीन मेंशन, राइट। तो अगर आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, राइट। तो अगर हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट, जस्ट अ मिनट,
अगर हम बात करेंगे इसमें, इफ आई गो फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, solid waste management rule 2016, yes it has been mentioned there, absolutely true. Then second अगर आ जाता है construction and demolition waste management rule 2016, yes it has been mentioned there also. Third आपका आ जाता है plastic waste management and handling rule 2016, yes it has been mentioned also. Means extended producer responsibility का provision रखा गया है इन सारे mentionings में. Then we have this thing, electronic waste or e-waste management rule 2016, yes this have been mentioned there, right. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं रखा गया है ये. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक अलग तरह की कैटेगरी बन जाती है, क्योंकि वहां पे उसको कलेक्ट बैक करना और डिस्पोज करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो वेस्ट है वो जो है हैजार्डस है नेचर में. ठीक है, इट इज क्वाइट हैजार्डस. ठीक है, उसमें इन्फेक्टिविटी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है. तो उसको तो आपको सिक्योर्ड लैंडफिल में या फिर इंसिनरेशन या फिर प्लाज्मा पायरोलिसिस, बहुत सारे मेथड है, डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा. तो यहाँ जो ये स्टेटमेंट है ये आपकी गलत स्टेटमेंट है कि ये वाले में प्रोविजन रखा गया है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो दिस वुड बी रॉन्ग. ऑल द अदर 4 स्टेटमेंट ए बी सी डी इज करेक्ट. बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है एंड फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर. फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो शुरू के 4 रूल्स हैं इनके अंदर ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी को प्लेस दिया गया है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 80? ये डिस्कशन में मेरा यही पर्पस है कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हो, जो आपने थ्योरी पढ़ी होती है, भैया प्रोड्यूसर ऐसे मतलब उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्रोड्यूसर कोई भी प्रोविजन निकाल सकता है. जैसे आप देखते हैं ना कि आप हमें कोक की बोतल दीजिए, हम आपको 1 रुपी देंगे या 2 रुपी देंगे. वेंडिंग मशीन लगा दी या बैग कलेक्शन कर ली या अपना कोई प्लेस बना दिया जहां से आप कलेक्ट करें. ठीक है, ये प्रोविजन रखा गया है इसमें. दीपिका कथायत, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं इसमें, इतना मैं बता देता हूं फिर भी आपको. देखो क्या होता है, एक प्रोविजन होता है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है आपका जिसको आप बना रहे हैं, उसमें जो प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट का, जैसे प्लास्टिक की बोतल है कोक की, आपने प्रोड्यूस कर दी, किसी ने उसको खरीदा, इंपोर्ट किया, और जो ब्रांड ओनर है, जो कोक का ब्रांड है, ठीक है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको कलेक्ट बैक करें. ठीक है ना, जो उस प्रोडक्ट से वेस्ट जनरेट हुआ है, और वो उसको मैनेज करें वेस्ट को, या अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें. तो ये वाला जो रूल है वो कहाँ कहाँ मेंशन है ये आपसे पूछ रहा है. तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में मेंशन है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में भी ये मेंशन है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में मेंशन है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में मेंशन है. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे ये इसलिए नहीं इंप्लीमेंट होता क्योंकि उसके अंदर आप वापस नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होता है. ठीक है, उसको डिस्पोज करना, ऑफ करना इज नॉट इजी, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट में ऐसी चीजें भी आती है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन टिश्यू है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है. ठीक है ना, आपकी जो मतलब बैंडेजेस, क्रैप बैंडेजेस यूज होती है, इंजेक्शंस हैं, इस तरह की चीजों को हम वापस लेके उनको मैनेज नहीं कर सकते या सर्कुलाइज नहीं कर सकते उसको. क्लियर है दोनों को, संजू कुमारी को, दीपिका कथायत को? जल्दी बताइए फटाफट से, क्विकली. संजू कुमारी को क्लियर है? चलो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वी आर मूविंग. ब्रीफिंग्स में आप देख सकते हैं, वी हैव मेंशन दैट ईपीआर क्या है, कब आया, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है ना, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर्स के ऊपर क्या है. ठीक है, काफी सारा डिटेलिंग्स वी हैव गिवन हियर, सो ऑल ऑफ यू कैन रीड दैट, दे हैव बीन मेंशन नाइसली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 81.